दोस्तों नमस्कार। नया साल मनाने के लिए मैं अपने दिल्ली पुलिस संघ के तमाम साथियों के साथ बाकू अजरबैजान आया हुआ हूं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर जगह है अजरबैजान, बाकू और हजारों किलोमीटर दूर है। आपको ताज्जुब होगा जानकर कि यहाँ पर एक फायर मंदिर है, अग्नि मंदिर है, जिसके अंदर हमारे तमाम शिव जी, कृष्ण जी, गणेश जी, तमाम हिंदुओं की वहां पर तस्वीरें हैं और वो हिंदू टेंपल कहलाता है, फायर टेंपल। परंतु यहाँ पर जिस तरह से हमारे देश के अंदर बुर्का, मदरसा, उस तरह की तमाम चीजें होती हैं और ये तमाम मुस्लिम कंट्री होते हुए भी कितना एडवांस है, कितना तरक्की पसंद है, कितने प्रोग्रेसिव है लोग। जो मेरे साथ मेरी टूर गाइड है जाहिरा, शी इज विद मी, 2 दिन से लगातार हमारे साथ हैं और उनके साथ हम लगातार बहुत सारी बातें जान रहे हैं मुस्लिम धर्म के बारे में। धर्म में कोई बुराई नहीं है, कोई भी धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं, सब अल्लाह ताला, भगवान, हमारे ईसा मसीह सब बढ़िया, किसी धर्म के अंदर कुछ गलत नहीं बताया गया। परंतु जिस तरह से हमारे 3 जो कंट्रीज है, पड़ोसी कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, जिस तरह से वहां पर मुसलमानों को एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है, उसका एक बहुत बढ़िया नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे साथ मेरी कोलीग जाहिरा जो मेरी गाइड भी है, शी इज ए वेल एजुकेटेड गर्ल, बट चूंकि अंग्रेजी ही समझ सकती हैं या अदर लैंग्वेज समझ सकती हैं, तो जो मैं क्वेश्चन करूंगा जाहिरा से, जाहिरा विल रिप्लाई इन इंग्लिश। जाहिरा, वेलकम with us, with my friends, with my colleagues. You are with us from last 2-3 days. You are my guide. You are my philosopher here. I have a question. Yes. You are being a Muslim. You are not using burqa, niqab, and all that. What the reason behind it? Yeah, we are Muslim country, but we are modern Muslim country. So to wear this hijab and burqa, it's not compulsory in our country. So it's up to the people. If they want to cover their head with burqa, so they can do this. If no, so they are not doing this. Okay, my next question is that Yes, what the marriage status here? How many marriage a man can do here? What the law says? Only one marriage. Legally, only one marriage. Only one marriage. Yeah. And one more thing, what about the education system? In India, you see there are thousands and thousands of madrasas. Their education, and what about madrasa here? What the difference between India and Azerbaijan? See, madrasa also in our country we have, but not inside the Baku city. Madrasa are located in the villages of Baku, in the villages which is the very religion, too much strict religion villages. And in madrasa they are teaching only Quran lessons and everything about religion. My next question is that I never seen the girls are wearing burqa, niqab, and moreover the male persons are not having long beard and different type of dress, pajama, kurta and all that. They are all modern dresses, young boys and old persons also. What the reason why they not using beard like the Indian people have, Middle East persons have? What the reason behind it? Because this is not our style. Because actually Azerbaijan is located between Europe and Asia. We are Euro-Asia country, and we are modern country. So this is not our style. That's why we have different style. That's why they are not like with the long beards or pajamas like this style. It's not our style. That's why. थैंक यू वेरी मच जारा। जो आपने हमारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों का जवाब दिए। वन लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट हलाला। देयर इज अ कल्चर इन इंडिया, इन मुस्लिम फैमिली, दिस इज ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स, गर्ल्स, लेडीज, देयर इज अ सिस्टम ऑफ हवाला, हलाला। व्हाट यू से अबाउट हलाला? इज इट प्रिवेल हियर? No, actually you were asking me this question. Halala is if some ladies are divorced, Yes. and they should sleep with one man, and after this get married. Again married with the same person. No. Not allowed. No. Before marriage, it's not allowed. No. ओके, थैंक यू वेरी मच। ये जहरा थी मेरे साथ, पढ़ी लिखी, ही इज माय टूर गाइड, मेरे दोस्तों की गाइड है। उन्होंने बताया, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। आप देखें कि पूरा आज हिंदुस्तान कितना, पूरा केरल से, दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से
पूरे कंट्री से हमारे दोस्त आए हुए हैं, हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए हमारे साथ दिल्ली से, दिल्ली पुलिस के हमारे बहुत सारे दोस्त और हमारे कुलीग्स आए हुए हैं। और जहां जहां हम लोग गए हैं हमने तरक्की देखी है, देश को आगे जाता देखा है। परंतु दुर्भाग्य है मेरे देश का कि जहां केवल राजनीति के कारण लोगों को इस तरह से परेशान किया जाता है, वहां पर एजुकेशन के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से दबाया जाता है। आप देखिए यहाँ कोई इस तरह का फैमिली डिस्प्यूट्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और ये भी धर्म को फॉलो करते हैं। आई विल लास्ट आस्क क्वेश्चन, डू यू ट्रस्ट इन द रिलीजन, डू यू बिलीव इन द इस्लाम? Of course, I trust in religion. I follow my religion. I believe in Islam, and I love Islam. Of Oh, course. wonderful! Nice to listen. One more. 95%. 95% Yes. of population here. Muslims, Yes, Muslim Muslims. population here. Yes. One more question. Have you traveled India? Not yet. No, not Not yet. yet. Okay, you are welcome to India. You tell all your colleagues. I will share this video to you so that they can know how the progressive Muslims are doing across the world. But we are Indian Muslims are being misused by the politicians for their own purpose, for their gain. जिससे हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है कि इस तरह से हम एक बड़े कंट्रीज में हैं, लोग आगे जा रहे हैं। आप यदि इस्तांबुल जाएं, दूसरे कंट्रीज में जाएं, साइप्रस में जाएं, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में जाएं, इस तरह का माहौल वहां पर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये मेरी जो बात है काफी आज तक जाएगी, लोगों को समझ में आएगी कि किस तरह से हमारे यहाँ देश के अंदर केवल राजनीति के लिए, वोट के लिए धर्म को मिसयूज किया जा रहा है। धर्म कोई बुराई नहीं है। आप हिंदुस्तान यहाँ आके देखिए कि कितना हिंदुओं को लव करते हैं। ये हमें फायर टेम्पल लेके गए, 18वीं सेंचुरी पहले हम लोग यहाँ आते थे, पर्शियन और हम लोग आते थे। आज यहाँ पर एक पर्शियन नहीं है, पर्शियन तमाम इंडिया में ही मिलते हैं। आपने देखा मुंबई के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, आगरा के अंदर लॉट ऑफ पर्शियन फैमिलीज आर हियर। पर यहाँ पर जिस तरह से एक प्रोग्रेसिव सोच है, उससे ये देश आगे जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद हमारा देश भी इन चीजों को समझेगा और आने वाले टाइम में हमारा देश भी इसी तरह से, मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे मुस्लिम बहनें और मेरे साथी हैं, वो जरूर एक दिन इस चीज को समझेंगे और हमारा देश आगे जाएगा और हमारा देश भी एक टूरिस्ट कंट्री बनेगा। जिस तरह से आप देखें कितना खूबसूरत माहौल यहाँ पर है, लोग जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव कंट्री है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि अब न्यू ईयर शुरू होने वाला है, सेलिब्रेशंस यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर निजामी स्ट्रीट VIP एरिया है, कनॉट प्लेस की तरह एरिया है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोग सेलिब्रेट करने आते हैं और हम लोग भी इंडिया से जो पुलिस के मेरे साथी हैं उनके साथ आए हैं। जय हिंद, जय भारत।